प्लीज चुप रहिए। आप आगे हो जाओ ना। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने जा रहे हैं और जैसा कि हम लोग को मालूम है कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द CAA। यार भाई आप लोग को मालूम है 2019 में जामिया ने जामिया के स्टूडेंट्स ने इसका खुलेआम तौर पे विरोध किया था और हम अब उसी स्टैंड पे जो है अभी भी फर्म है। Here we are announcing our legacy of resistance. We will be continuing our resistance. So here we call you for the press conference. जो जामिया के स्टूडेंट्स का इस बिल पे टेक है वो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। उसके बाद आपके कोई जो सवाल हो, यहाँ पे तमाम संगठन के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, आप उन सवाल पूछ सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अल्फाज है और मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ जामिया। अरे भैया यार ये लग रहा है जामिया मिल्लिया इस्लामिया रेजिस्ट CAA। जामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट गेट नंबर 7। जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपोजिंग द गवर्नमेंट डिसीजन टू इम्प्लीमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। On 11th March 2024, the RSS-led BJP government issued a notification that the rules for the implementation of CAA will be released on the same date. The rules for the implementation of CAA were released later that day, and that put forward the question once again in front of the people of India, the draconian policy of the Indian state in its desperate efforts to transform India into a fascist Hindu Rashtra. The issue here is not focusing more on the content of the rules, because ultimately it is for the purpose of implementing Citizenship Amendment Act, which in itself is patently unjust, discriminatory and divisive, and was opposed 4 years back as well. What is more concerning is that the bill got implemented one day before the SBI is supposed to keep a detailed account of the electoral bonds. The implementation of the bill at this time is a clear tactic being used by the Modi government for polarization and to gather more votes in the name of Hindutva before the upcoming 2024 general election, as the RSS BJP is also in a desperate attempt to sideline these issues regarding the electoral voting machines and electoral bonds to facilitate the corporate fascist hijack of the Indian political regime without any scope for the people's resistance. For Jamia students, CAA is not a new question. We have an experience of organizing a people uprising against the CAA, NRC and NPR, which stood up for more than 3 months from before 2019 to March 2022. The movement faced massive repression from the fascist state and its instruments of oppression like police, bureaucracy, RSS outfits, etc. Many activists such as Miran Haider, Umar Khalid, Sharjeel Imam, Shifaur Rahman, Gulpita Fatima and many more who led the movement were charged with UAPA and under draconian laws and were put in prison. Ultimately, in the name of COVID-19 pandemic, the government got the opportunity to suppress our movement. Many are still in jail, and now through intense militarization, Jamia has become an open jail where protesting itself has become a crime. Now the government has brought back CA once again to implement RSS primary objective of transforming secular India into a Brahmanical Hindu Rashtra, where Muslims will be declared as secondary citizens without being considered as human beings. Gowalkar, who was the leader of RSS, in his bunch of thoughts declared that there are 3 enemies: Muslims, Christians and communists. Currently in this project, the Muslims are the primary enemies in front of the Sangh, tagging Muslims as outsider, invaders and terrorists in their tactics to create a Hindu-Muslim polarization. This law, which provides citizenship based on religion by selectively excluding Muslims from getting citizenship, goes against the concept of secularism, which is a basic principle of the Constitution of India. That is why we, the students of Jamia Millia Islamia, organized under the banner of different organizations, are condemning this anti-Muslim, undemocratic and outrightly fascist law and the government decision to implement this law. This is just the beginning of the struggle. Jamia students will continue our struggle by uniting the people against the draconian CAA, NRC and NPR. Finally, we have our 3 demands. The first demand is to repeal the Citizenship Amendment Act. The second demand is release all students booked in the anti-CAA movement and withdraw all the cases charged against the students and the people. The third demand is to demilitarize our campus, which you can see all around. Thank you so much. Now, if you have any question,
We have the representative from different organizations. You can pose the question, they will answer your questions. Thank you. हमें एजुटेशन देखने के लिए मिला था 1920 के अंदर, शाहीन बाग देखने के लिए मिला था नॉर्थ ईस्ट में। क्या स्टूडेंट यूनियन इस तरह का कोई एजुटेशन प्लान कर रहा है? अपना इंट्रोडक्शन देके करिएगा। मेरा नाम अदनान है और तेज बोलिए, तेज। जामिया का स्टूडेंट हूँ मैं, मेरा नाम अदनान है। और अभी जैसा आपने बोला, हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या बोलती है। हम जो भी करेंगे आगे वो गवर्नमेंट के हिसाब से करेंगे, जो गवर्नमेंट करेंगे उस हिसाब से हमारा प्लान ऑफ एक्शन हो। अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन है आपको। नहीं, इससे जुड़ा हुआ है। आपका कहने का मतलब ये है कि सामने में क्या बोलना, अभी इस पे हम कोई बात नहीं बोले, अभी इस पे कुछ नहीं बोला जाए। जो आप लोग का कॉमन सवाल है कि जामिया के स्टूडेंट्स का क्या स्टैंड है, क्या हम प्रोटेस्ट करेंगे इस पे। सो आई जस्ट वांट टू डिक्लेयर वन थिंग, द जामिया स्टूडेंट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टोटली डिपेंड्स ऑन दिस, द स्टेट फ्यूचर, द स्टेट what the BJP is going to take action on this particular anti-CAA movement. Our action is dependent on their action. सरकार तो कह रही है सीए किसी की नागरिकता छीन नहीं रहा है। कौन एड्रेस करेगा? अपना लोग। मैं अमृत बोलो। मैं अमृत हूँ ANI से। सरकार लगातार ये कह रही है कि सीए किसी की नागरिकता छीनने का अधिनियम नहीं है, वो केवल और केवल जो दबे हुए अल्पसंख्यक है 3 राष्ट्रों के, उनको नागरिकता देने का प्रावधान कर रही है। मुसलमानों को इससे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, इस बात की क्या तस्दीक करेंगे आप, क्या जवाब देंगे? Actually, this question should not be answered because this question in itself is biased. ठीक है, हम लोग यहाँ पे मूवमेंट किए थे। सरकार जो हमारे खिलाफ जो लागू किया था जो नियम, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे 4 महीने मूवमेंट किए थे। और उसके ऊपर जो गोली चला है, उसके ऊपर जो अटैक हुआ है, उसको ही एकदम भूलने वाला एमनेशिक टाइप ऑफ थिंग है इसका सवाल, इसलिए हम इसको जवाब नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, अपना इंट्रोडक्शन दे दो। सवाल क्या है? चलो द थर्ड क्वेश्चन। बाबा ठीक है। सर क्या डंडा में आपको NRC से एक चीज जानना चाहूंगा क्योंकि ये अनाउंस ऐसे वक्त में किया गया, एक तरफ तो रमजान शुरू हो रहा है, दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड का। इधर आ जाओ, मामला चल रहा है, ऐसे में कैसे देख रहे हैं? दादा तुमने मेरे हाथ को जख्मी कर दिया। निकल नहीं रहा, जोर से बोलिए। आवाज सीए का ही बात कर रहे हैं फिलहाल। जो आप कह रहे हैं ना कि NRC और MPR का नोटिफिकेशन नहीं आया, तो हम सीए का ही बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो एक्ट है वो डिवाइसिव है, कम्युनल है। क्योंकि SBI को डेटा देना था तो उसके बीच में ये ले आए ताकि पोलराइजेशन और उसके बेसिस पे वोट इकट्ठा कर सके। एंड सीए अपने आप में इसलिए भी डिवाइसिव है क्योंकि आप एक जो हिंदुस्तान सेक्युलर कंट्री है वो किसी को धर्म के नाम पे, किसी को भी धर्म के नाम पे सिटीजनशिप क्यों दे रहा है? आप उन लोगों को सिटीजनशिप देना चाहते हैं जो परसिक्यूटेड है, तो श्रीलंकन तमिल भी परसिक्यूटेड है, आप उनको भी सिटीजनशिप दीजिए। रोहिंग्या मुस्लिम भी परसिक्यूटेड है, आप उनको भी सिटीजनशिप दीजिए। हमारा संविधान नहीं पूछता है कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले नहीं पूछता है कि आप क्रिश्चियन हैं, आप जैन हैं, आप बुद्धिस्ट हैं। ये देश का मिट्टी सबका है, तो सिटीजनशिप भी आप दीजिए तो सबको दीजिए। और ये जो 2024 का चुनाव आने वाला है, इसमें जनता एम्प्लॉयमेंट मांग रही है, जनता मांग रही है। यहाँ दिल्ली की बॉर्डर्स पे किसान खड़े हैं, वो MSP की गारंटी मांग रहे हैं, और उसके बीच में सिटीजनशिप एक्ट लाना सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन क्रिएट करने का तरीका है। और हम जामिया के स्टूडेंट्स इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। टोपी आ रही है बस। अरे लो, चलिए ठीक है। क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, क्वेश्चन है सीए जो था 2019 में दिसंबर को राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पारित हुआ, उसके बाद आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा पूरी हल्का अब्दुल भाई थोड़ा तेज। ये जो सीए का जो एक्ट लाई थी सरकार 2019 में लाई थी दिसंबर में, 9 दिसंबर को लोकसभा और उसके बाद 11 दिसंबर को राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने भी उस पर साइन कर दिया। लेकिन
जिस तरह से सरकार जो है वो चुनाव को मद्देनजर देखते हुए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में चुनाव का अनाउंसमेंट होने वाला है और 4 साल के बाद जो है वो अधिनियम को लागू कर रही है, तो क्या लगता है आपको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए और एक बड़ी कम्युनिटी का वोट शेयर अपनी तरफ करने के लिए सरकार ने ये अधिनियम लागू किया है? इसके अंदर जैसा आपने कहा कि चुनाव आने वाले हैं और आपको पता होगा, यहाँ मीडिया खड़ी है कि कल CBI को फटकार लगाई है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, कहा है कि 26 दिन आपने क्या किया, को सुकून नहीं मिल पा रहा है क्या? तो ऐसे मौके पे निकाला गया है जहाँ पे मुद्दा भटकाने की कोशिश है। हम ये सवाल अब नहीं पूछ रहे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सरकार से कि क्यों कहाँ है सारा इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पब्लिक को, कहाँ है इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कोर्ट के लिए। हम ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम हेडलाइन मैनेजमेंट का काम है जिसके अंदर आप सब भी बहुत साथ में हैं उसके। अब सीए एकदम रमजान से एक दिन पहले, आज रमजान शुरू है और कल सीए इम्प्लीमेंट कर दिया, नोटिफिकेशन दे दिया है, इलेक्शन आने वाले हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ इनका पोलराइजेशन का है। इनका काम इनके जितने टैक्टिस्ट हैं, राम मंदिर के टैक्टिस्ट हैं, पोलराइजेशन करने के टैक्टिक्स हैं, वो चल नहीं रहे हैं इनके। ये चाह रहे हैं कि हम समाज में कैसे और लोगों को भटकाएं, कैसे और हम कोशिश करें कि लोग एक दूसरे से बहस करें और एक दूसरे से झगड़ा करें और बात निकलवा के लाएं, कंट्रोवर्सी निकलवा के लाएं और अपना जो इलेक्शन होगा वो स्मूथली निकाल लें और बहुमत से लेके आए। यहाँ पे इनके पास इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट का सवाल नहीं है, एनईपी पे सवाल नहीं है, FYUP पे सवाल नहीं है, हमारी शिक्षा पे सवाल नहीं है, हमारे किसान जो बैठे उन पे सवाल नहीं है, पर इनको बस ऐसे कानून लाने हैं, ऐसी बार बार ऐसी चीजें करनी है जो हमारे समाज में पोलराइजेशन करे। इनके हिसाब से हर जो व्यक्ति बाहर आके खड़ा होता है, सवाल पूछता है, वो एनिमी हो जाता है इनका। और बस हमारे सुप्रीम लीडर की बात चलनी चाहिए। तो हम ये कहना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा और हम जानते हैं कि हमारी सरकार क्या करना चाहती है और उसके क्या टैक्टिस है और हम उसके अंदर हमें बेवकूफ़ ना समझे। वो हम अपना एजुटेशन, हम अपना जो मुद्दा है, हमारी जो बात है, हम उसे आगे रखेंगे। थैंक यू भाई आगे थैंक यू। कुछ और सवाल है? एक सवाल ये है कि जिस प्रकार से जब आज से 5 साल पहले जब सीए लागू की बात कही गई तो यहाँ से शाहीन बाग से और जामिया से पहली आवाज़ बुलंद हुई थी, इस बार ऐसा कुछ देखने को मिलेगा क्या? इस बार बिल्कुल सरकार ने जो अमेंडमेंट का कानून लेके आया है इस इम्प्लीमेंटेशन का, तो उसको लेकर जैसे अभी तो डेट डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन जैसे सरकार इसे ग्राउंड पे लेके आएगी, हमारा एजुकेशन जैसे 2019 में था वैसे फिर सड़कों पे उतर के आएगा। और आईसा का जो कॉल है वो कल नेशनल प्रोटेस्ट डे का कॉल है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार, चाहे वो किसान के बिल हों, चाहे वो फिर क्रिमिनल कोड हो या फिर NEP जो लेके आते हैं, जिस पर लगातार बहस होनी चाहिए, और लेकिन इस पर बहस की नहीं जा रही है और ऐसे मुद्दे लेके आ रहे हैं जिनसे लोग पोलराइज हों। किसानी कोई मूवमेंट को लेकर इन्होंने पूरी तरीके से बॉर्डर को, न सिर्फ बॉर्डर को, हमारे कैंपस को मिलिटराइज कर दिया गया है कि मतलब आप आवाज़ उठा ही नहीं सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर खड़े होकर आगे बोल रहा है तो उसको उसके ऊपर UAPA लगाया जा रहा है। और एंटी-CA मूवमेंट आपने देखा कि शर्जील इमाम, मीरान हैदर को किस तरह से लगातार और उमर खालिद को जेल में बंद कर दिया गया है। और ऐसे हेट स्पीच देने वाले कपिल मिश्रा हैं और सारे अनुराग ठाकुर जैसे आज बाहर घूम रहे हैं। तो सरकार पूरी तरीके से इस अपने RSS BJP के फासिस्ट एजेंडे को आगे रखना चाहती है। और ये जो सपना देख रहे हैं भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का, इनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आज जनता, जितने भी इनके कानून आए हैं, जन विरोधी काले कानून आए हैं, उनके खिलाफ जनता अवेयर हो रही है और इनको पता है कि जनता को ये सारी चीजें पता है। रोजगार के मुद्दे पर ये पीछे हट जा रहे हैं। शिक्षा विरोधी जिनके जो कानून आ रहे हैं उनसे जनता हमेशा खफा है और इसके खिलाफ नहीं, इसको निकालो, सर आवाज नहीं आएगी, पीछे हो जाएंगे तो। सर
बोल रहे हैं तो उनकी आवाज तो आने दो, धकेल क्यों रहे? अरे पीछे हो जाओ सर, इधर आ जी, एसएचओ साहब। सर पीछे से तो जब हो सकता है। स्टूडेंट अपनी बात रख रहे थे सीएए को लेके, वो बता रहे हैं कि वो उसे रिजेक्ट करते हैं। जिस तरीके से धर्म के आधार पर भारत सरकार ने नागरिकता देने का एक कानून पास किया है, उसी को लेके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब ये आप देख रहे हैं कि वो नारेबाजी कर रहे हैं छात्र, और पुलिस जो है इस गेट पे से इन लोगों को हटा रही है, जो लोग उनकी आवाज़ दिखा रही है उठा। तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से, जहां अभी छात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उसी के बाद अब नारेबाजी कैंपस के अंदर आपको सुनने को मिल जाएगी। और पुलिस ने पूरी तरह से इस गेट नंबर 7 को रस्सियों के साथ जकड़ लिया, बंद कर दिया है पूरा रास्ता। मेरा माइक होगा। मीडिया कर्मी को हटा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जामिया के जो छात्र CNRC का जैसे नोटिफिकेशन भारतीय सरकार ने जारी किया, उसके बाद यहाँ पर जामिया के छात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर जो नागरिकता दी जा रही है वो कहीं तक सही नहीं है, लेकिन मीडिया से भी बात करने नहीं जा रहा, क्योंकि जो पुलिस है गेट नंबर 7 पर, वही गेट नंबर जहाँ पे ऐतिहासिक CNRC की शुरुआत हुई थी 2019 में। जामिया के छात्र यहाँ से प्रदर्शन कर रहे थे कि जामिया के छात्र फिर भी आज हंगामा कर रहे हैं। गेट नंबर 7 पर उनको अंदर कैद कर दिया गया, क्योंकि बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं खुला हुआ, जो ये प्रदर्शनकारी है वो बाहर आ जाए। लेकिन ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है नारेबाजी कर रहे हैं, और जो पुलिस है भारी संख्या में यहाँ पर फोर्स को तैनात कर दिया गया। गेट नंबर 7 जहाँ पर जामिया CNRC की शुरुआत 2019 में गेट नंबर 7 से प्रदर्शन यहाँ पर